Hello friends, welcome to Gulbarga Coaching Academy. Today we are dealing with another part that is very important for the CTET, Central Teachers Eligibility Test, and Karnataka Teachers Eligibility Test, and the Teachers Eligibility Test of the different states. So that is the very important part related to the psychology. If we talk about the psychology, especially in the psychology, child development and pedagogy played a very important role for cracking the different teachers eligibility examinations along with the different examination that deals with the teaching post. So dear students, the concept that we have adopted today that we are going to discuss, that is very important related to the child psychology. Learning disorders means Amuzishi Mazuria in Urdu. I use the bilingual method of teaching because many of the students have requested that, sir, you have to be used it is a request to use the bilingual method. You have to explain in Urdu also, because in many states there is a provision for the question paper in the bilingual or multilingual question paper in Kannada, Urdu, English, Malayalam and so and so. If we talk about the learning disorder, अगर हम learning disorder या Amuzishi Mazuria की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में डेफिनेटली ये फिक्स क्वेश्चन है. यस, सही सुना आपने, ये डेफिनेटली फिक्स क्वेश्चन है, हर एक एग्जामिनेशन में आता है. इफ यू टर्न टू द पेपर previous year question paper, you can find this concept, learning disorders. So in that learning disorders we have a different kind of a disorders. So before going on that, it is necessary for us to know about the definition of the learning disorders. So learning disorder is differ from the disabilities. So it is called as neurodisability. न्यूरो डिसेबिलिटी यानी हमारे जो है आसाबी अवारिस कहेंगे हम, आसाबी अवारिस इन अदर वर्ड इन दैट्स रिलेटेड टू द आसाबी, ये आसाबी निज़ाम से जो ताल्लुक़ रखता है उसको हम कहते हैं न्यूरो, मीन्स इट्स डील्स विद आवर neurological system. So due to the this we can find this kind of a disorders, learning disorder among the children. So that is the causes of, if we go to the causes of the learning disorders, we can find the different causes in that causes of learning disorders. कॉजेस या वजूहात कहेंगे हम, इसकी वजूहात क्या है. तो आप अगर हम वजूहात की बात करते हैं तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन इज हेरिडिटी. सो हेरिडिटी इज वन ऑफ द फर्स्ट फॉरमोस्ट problem or in kind of cause for the sake of the learning disorder. After heredity, second one is heredity कहेंगे तवारिस या विरासत को हम कहते हैं. तो heredity के बाद हमारे पास second आता है, that is called as the environment, and after that environment we can say that another is the pre-birth and the post-birth. प्री बर्थ एंड पोस्ट बर्थ, या पैदाइश से पहले या पैदाइश के बाद, अगर कुछ जो है माँ की कोख में या माँ पैदा होने के बाद कुछ उसकी डेवलपमेंट जो है नशोनुमा से नहीं हो पाती है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है. तो उस वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या आसाबी जो है क्या मालूम है खामियां या खराबियां किसको डिफाइन करती हैं, किसको जो है प्रोमोट करती हैं, दैट लीड टू द आमुजिशी माजुरिया आर लर्निंग डिसऑर्डर्स. सो इन दैट लर्निंग डिसऑर्डर्स वी हैव कैटेगराइज डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर. हमने अलग अलग लर्निंग डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज किया है, जिसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास जो फर्स्ट वन है लर्निंग डिसऑर्डर में, वो दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ग्राफिया. डिस्ग्राफिया इट इज द नोटेड एज द लिखने से मुताल्लुक माजुरी, लिखने से मुझसे मुताल्लुक माजुरी. डिस्ग्राफिया इज नथिंग बट इज डिस्ग्राफिया, लिखने से मुताल्लुक माजुरी. इफ ए स्टूडेंट इज राइटिंग बी इन प्लेस ऑफ डी और इन प्लेस ऑफ D, he is writing B. So what it is defined? It is called as the dysgraphia. लिखने से जो है जो माजूरी बच्चे के अंदर प्रमोट हो रही है वो न्यूरो सिस्टम की वजह से या न्यूरो डिसऑर्डर की वजह से, वो क्या है, डिस्ग्राफिया है.
तो डिस्ग्राफिया के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस एग्जामिनेशन में है, सीटेट में भी आया क्वेश्चन है। तो एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि आने वाले जो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो सीटेट का या के टेट का या एम टेट का, महाराष्ट्र टीटी, कर्नाटक टीटी, आंध्र प्रदेश टीटी, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ ए क्वेश्चन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यानी तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि जो है कोई एक बच्चा है वो बी को डी लिखता है या डी को बी लिख रहा है, तो इसका कौन सा डिसऑर्डर होगा। सो ये डिसऑर्डर होगा हमारे पास लर्निंग डिसऑर्डर में डिस्ग्राफिया आएगा। डिस्ग्राफिया के बाद और एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द अनदर इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज द डिस्कैल्कुलिया। डिस्कैल्कुलिया। सो व्हाट इज डिस्कैल्कुलिया? तो इन उर्दू इट इज कॉल्ड एज रियाजी से मुताल्लिक़ आमुज़िशी माजूरी। तो रियाजी से मुताल्लिक़ जो आमुज़िशी माजूरी है, हम उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एज डिस्कैल्कुलिया। सपोज इफ ए चाइल्ड इज राइटिंग 25 as 52, what is called? It is called as the learning disorder dyscalculia. Or in place of 6 he is writing 9, or in place of 9 he is writing 6. 6 की जगह 9, 9 की जगह 6 लिख रहा है, या 25 की जगह 52, 52 की जगह 25 ये लिखता है, तो इल्मी रियाजी से मुताल्लिक़ उसकी माजूरी है। तो ऐसी माजूरी को हम कहेंगे डिस्कैल्कुलिया। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अनदर डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड एज द डिसलैक्सिया। डिसलैक्सिया इट इज कॉल्ड एज द पढ़ने से मुताल्लिक़ माजूरी। माजूरी। सो डिसलैक्सिया का कॉन्सेप्ट जो है वो डील करता है, किससे करता है? डिसलैक्सिया इज मेनली रिलेटेड टू द पढ़ने से मुताल्लिक़ और रीडिंग, इन अदर वर्ड वी कैन से दैट रीडिंग डिसऑर्डर्स। Reading disorder is noted as the dyslexia. Suppose a student is reading as was, or was as a saw, so it defined as that it is called as the reading disorder in the learning disorders। पढ़ने से मुताल्लिक़ माजूरी को हम कहेंगे डिसलैक्सिया। आफ्टर दिस अनदर कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट इज दैट इज डिस्प्रैक्सिया। So it is called as lacking in the physical coordination. So lacking in the physical coordination is called as the, यानी जिस्मानी जो है, क्या मालूम है, रवाबित के जिस्मानी जो है, उजुलाती जो है, जो हरकत हैं, या मोटार स्किल हम कहेंगे, उन स्किल्स के अंदर कुछ लैकिंग होती है, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्रैक्सिया, मोटार स्किल। सो जिस्मानी जो है जिस्मानी जो उजलात हैं, उन उजलात का हरकत ना कर पाना, या से किसी तरह से जो है पूरी तरह से जो है मुहर्रिक तरीका मोहरिकात का काम ना करना, तो डेट इज कॉल्ड एज द डिस्प्रैक्सिया। इसको हम डिस्प्रैक्सिया कहेंगे। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह इन अपकमिंग वीडियो आई शैल कंप्लीट अनदर पार्ट दैट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। एज यू नो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी इज one of the important part. So today we have completed learning disorder, very important part. So it is before winding up this session, it is a request to like, subscribe and watch my channel for upcoming videos.